میری ماں خوبصورت تھیں، مگر اچھی تقدیر نہ تھی کہ والد صاحب شادی سے پہلے کسی لڑکی کو چاہتے تھے اور اسی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتے تھے، لیکن اس لڑکی کے گھر والوں نے ان کا رشتہ رد کر دیا۔ تب دادی نے بیٹے کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی اور یوں میری والدہ ان کی بہو بن گئی۔ شادی تو ہو گئی، مگر جیون ساتھی کے دل میں تو کوئی اور بسی تھی۔ انہوں نے اپنی دلہن کو دل سے قبول نہ کیا۔ مشترکہ فیملی سسٹم تھا۔ ماں اور بھائیوں کے دباؤ سے مارے باندھے کچھ برس بیوی کے ساتھ گزار دیے، مگر اپنی پہلی محبت کو نہ بھول پائے۔ اس لڑکی سے جس کا نام ندا تھا، وہ اکثر چھپ چھپ کر ملتے رہتے تھے۔ ایک دن زمانے کی پرواہ کیے بغیر دونوں نے اپنی مرضی سے نکاح پڑھوا لیا۔ ندا کے والد اور بھائیوں کو اس طرح اپنی لڑکی کے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا بہت رنج تھا، اور وہ میرے ابو سے بدلے کی سوچ رکھتے تھے۔ 2 بار ان کے سالوں نے چاقو سے وار بھی کیا، جبکہ وہ کہیں راستے میں ان کو مل گئے تھے، لیکن خدا نے بچا لیا۔ اب والد کو ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ضرور ندا کے بھائی کسی دن ان سے بدلہ لیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے نوکری چھوڑ کر وہ ندا کو لے کر کسی نامعلوم شہر میں جا بسے۔ اب وہ صرف کبھی کبھی دادی سے خفیہ طریقے سے رابطہ کر لیتے تھے، باقی کسی سے ناتا نہ رکھا، بیوی بچوں سے اور نہ فیملی کے دوسرے افراد سے۔ والد نے کبھی 1 روپیہ بھی ہم کو نہ بھیجا۔ ماں بیچاری اپنے جیٹھ کی دستے نگر ہو گئیں۔ میرے تایا ایک شریف اور حساس انسان تھے۔ جب انہوں نے بھائی کی اولاد کو بھوک سے بلکتے دیکھا تو پریشان رہنے لگے۔ ایک معمولی ملازمت تھی اور تنخواہ میں 2 کنبوں کا گزارا محال تھا۔ تبھی نوکری کو خیر بات کہہ دیا اور بیوی کے زیور فروخت کر کے وہ بیرون ملک جانے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ تائی نہ چاہتی تھی کہ کمانے کی خاطر وہ دبئی جائیں۔ وہ لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئیں۔ تایا کے سسر اور سالے ان کو سمجھانے آئے، وہ پھر بھی نہ مانے تو انہوں نے بات کو اتنا بڑھا دیا کہ نوبت طلاق تک پہنچا دی۔ یوں تائی نے طلاق لے لی اور ہماری خاطر تایا ابو کا بسا بسایا گھر برباد ہو گیا۔ ان کے 3 بچے تھے، وہ بھی تایا نے امی جان کے حوالے کر دیے۔ ہم 3 بہن بھائی اور والدہ، 4 افراد کا خرچہ اب تایا کے ذمے تھا۔ دادی حیات تھیں، انہوں نے کسی بیٹے کو علیحدہ رہنے کی اجازت نہ دی، لہٰذا ہم سب ہی ان کے ساتھ دادی کے گھر قیام پذیر تھے۔ کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ تایا کی نیت اچھی تھی، بیرون ملک جاتے ہی ان کو اچھا روزگار میسر آ گیا اور خوب کمانے لگے۔ وہ ہر ماہ ایک معقول رقم امی کو ارسال کرنے لگے۔ وہ گھر کی بڑی تھیں، سارے کنبے کا خرچہ وہی چلاتی تھی۔ ہمیں خبر نہ تھی ہمارا باپ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ہم تو بچے تھے، والدہ کی افسردگی کو محسوس ضرور کرتے تھے۔ ان دنوں میری عمر 6-7 برس ہوگی اور میرا بھائی صباحت مجھ سے صرف 1 برس اور 2 ماہ ہی بڑا تھا۔ وہ کچھ لاپرواہ مگر میں کافی سمجھدار اور حساس تھی، حالات کو جلد سمجھ لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھ کو ماں کا دکھ سمجھ میں آنے لگا اور میں ان سے زیادہ قریب ہو گئی۔ امی کو میکے والوں کی سپورٹ حاصل نہ تھی، وہ صرف اس امید پر زندگی کے دن گزار رہی تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ ہم کو سنبھال لے گا۔ ہمارے لیے دادی کا وجود اللہ تعالیٰ کا انعام ہی تھا کہ ہم ان کے مشترکہ فیملی سسٹم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ کھانا ایک جگہ پکتا اور سب کو ایک ساتھ ملتا تھا۔ 2 چچا اور بھی تھے، وہ بھی اپنی آمدنی دادی کے ہاتھ پر رکھتے اور تایا بھی ہر ماہ باقاعدگی سے رقم ارسال کرتے رہتے تھے۔ دادی بحسن و خوبی اس رقم سے گھر بھر کا انتظام چلاتی تھیں۔ ہر کسی کو معقول جیب خرچ ملتا اور سب کے کپڑے ایک نوعیت کے ہی خریدے اور سلوائے جاتے۔ غرض باپ کے ہونے نہ ہونے کا احساس ہم کو نہیں ہوا کہ ضرورت کی ہر شے ہمیں ملتی تھی، کسی قسم کی تنگی نہ تھی۔ تاہم امی جان کو ضرور یہ احساس محرومی ستاتا تھا کہ وہ اور ان کے بچے شوہر کی نہیں بلکہ جیٹھ اور دیوروں کی کمائی پر پل رہے ہیں۔ والد صاحب نے کبھی ہماری کفالت کا ذمہ نہیں لیا اور نہ کبھی ملنے آئے۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد تایا ابو نے دوسری شادی نہ کی۔ ہر بار جب چھٹی پر آتے دادی ضرور کہتی کہ فیاض بیٹا اب تم دوبارہ سے شادی کر کے گھر بسا لو، میری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم کو گھر بار کا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کچھ اور ٹھہر جاؤ، مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تھوڑی رقم اور جمع کر لوں تو ہو جائے گی شادی بھی۔ تاہم اس بار جب وہ آئے دادی نے اپنے رشتہ داروں میں ایک خوبصورت اور کم عمر لڑکی سے ان کی شادی کرا ہی دی۔ شادی کے بعد تایا اپنی نئی دلہن کے ساتھ صرف 1 ماہ رہ سکے کہ چھٹی ختم ہو گئی تو وہ واپس دبئی چلے گئے۔ تایا کے جانے کے بعد تائی سپنا بہت اداس رہنے لگی۔
उन दिनों मैं 8वीं और सबाहत 10वीं में था। ज़रूरत की अशिया सपना मेरे भाई से मंगवाती। वो सबाहत के साथ खूब बातें करती क्योंकि मेरा भाई हद दर्जा बातूनी था। सबाहत की कंपनी से ताई का दिल बहला रहता था। सपना को ताई बुलाने से झिझक आती थी क्योंकि उनकी उम्र 16-17 बरस थी और ताई कहना उन पर जचता न था। मैं तो उनको सपना आपी ही बुलाती थी, जबकि सबाहत सिर्फ सपना और कभी सपना ताई भी कह देता तो कहने पर वो बुरा मना लेती। तुम्हारा ये ताई बुलाना मुझ पर जचता नहीं है। तुम लोग मुझको सिर्फ सपना या सपना आपी कहकर बुला सकते हो। जब सपना का दिल तन्हाई से घबराता वो मुझे और सबाहत को अपने कमरे में बुला लेती। मेरा मसला ये था कि मुझको ज़्यादा बातें करना पसंद न था। स्कूल से आकर अम्मी के साथ काम कराती और फिर पढ़ने बैठ जाती, जबकि सबाहत नकम्मा और लापरवाह किस्म का बातूनी लड़का था जिसको पढ़ने से ज़्यादा इधर उधर फिरने और वक्त ज़ाया करने से काम था। बस उसकी सपना ताई से बन गई और वो घंटों उनके कमरे में बैठकर गप्पे हाँकता, अपना वक्त ज़ाया करता रहता। अम्मी उसको कुछ ना कहती कि कहीं सपना बुरा ना मान जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। भाई ने किसी तौर मैट्रिक पास कर लिया। अब वो कॉलेज जाने से जी चुराने लगा। आए रोज़ छुट्टी कर लेता। बिल आखिर उसने कॉलेज को खैर बात कह दिया क्योंकि उसको पढ़ाई से दिलचस्पी ना थी। अब उसका सारा वक्त सपना ताई के कमरे में गुजरता, उनके साथ हंसता बोलता, जिससे उसका जी बहल जाता था। उन्हीं दिनों फुप्पो की शादी हुई। ताया शादी पर दुबई से आए, लेकिन छुट्टी ख़त्म होते ही वापस चले गए क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। अगर बगैर छुट्टी के रुकते तो नौकरी चली जाती। सबाहत उस वक्त कच्चे जहन का नासमझ लड़का था। बाप का हाथ सर पर ना था, लिहाजा खुद सर हो गया। अम्मी का कहना नहीं मानता था, सिर्फ ताया से लिहाज था। चचा यूं भी उसको कुछ ना कहते कि महसूस ना कर ले कि बाप मौजूद नहीं है, तो चचा डपटते और टोकते हैं। चचा सुबह ऑफिस चले जाते, घर में सबाहत ही होता, वही सौदा सल्फ भी लाता। बाकी वक्त सपना ताई के कमरे में घुसा रहता। उनके कमरे में नया टीवी था जिसमें ज़्यादा चैनल आते थे। वहाँ टीवी देखता या फिर सपना को नई नई इंडियन फिल्मों की कैसेट्स ला कर देता और दोनों वीसीआर पर फिल्में देखकर वक्त पास करते। दादी नई नवेली बहू को कुछ न कहती कि दुल्हन बगैर दुल्हा के ससुराल में रह रही है, उसका जी बहला रहे। किसी को खबर न थी कि सपना की शादी से कबल किसी और लड़के से जान पहचान थी। वो लड़का आवारा किस्म का था और उनके मोहल्ले का था। सपना के वालिद उसको नापसंद करते थे। ताया घर होते तो शायद उनकी दुल्हन की हिम्मत ना होती। अब तो तन्हाई के दश्त की मुसाफिर थी। मेरे भाई के साथ दोस्ती बनाकर उन्होंने उसको अपना पियांबर बना लिया, जिसका किसी को इल्म ना हो सका। बाहत भी उनकी चिकनी चिपड़ी बातों की वजह से उनके घेरे में आ गया। उसको खूब रुपया पैसा जेब खर्च देकर अपनी तरफ कर लिया। वो बेवकूफ़ भी ताया से गद्दारी करके सपना का राजदान बन गया। अब सौदा सल्फ के बहाने सबाहत को जहाँ भेजती हुक्म के गुलाम की तरह तामील करता। घर वाले समझते कि ताई का काम है, ये ना करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन कौन जानता था कि ये शातिर लड़की उससे क्या काम ले रही है। सभी ये समझते कि चलो दुल्हन का जी बहला रहता है, सबाहत से हंस बोल लेती है तो कोई बात नहीं। सबाहत अकलौता था, दादी उसको बहुत चाहती थी। वो दादी की जान था, उसकी हर बात मानती और हर फरमाइश पूरी करती थी। यूँ उसका मिजाज बिगड़ गया। अम्मी की कोई बात ना मानता, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी थी। जब दादी का इंतकाल हो गया तो मंजली चचा की बीवी ने अलहदा घर में रहने का मुतालबा कर दिया। वो बीवी को लेकर अलग हो गए। इस पर छोटी चच्ची ने भी मुतालबा किया कि सहन के दरमियान दीवार उठाकर हमको भी अलहदा करो ताकि सुकून से रहें। अब आधा घर दीवार के इधर आधा उस तरफ था। आधे में हम और सपना ताई रह गए। ताई का बस न चलता था कि वो भी अलहदा हो जाएं, मगर अकेले होने की वजह से साथ रहने पर मजबूर थी। हाँ, इतना मुतालबा ज़रूर किया कि सहन के आधे हिस्से में दीवार होनी चाहिए, मगर दरवाज़ा भी बना दें ताकि आना जाना रहे और घर एक मालूम हो। उन्होंने किचन भी एक रहने दिया ताकि मेरी माँ और हम बहनें ही पकाएं और वो किचन के बखेड़े में ना पड़ें। माँ ने सपना के कहने की तामील की क्योंकि कमाता तो उनका शौहर था और हम उनकी कमाई खाते थे। अम्मी को हर हाल में अपनी जिठानी को खुश रखना था। सपना के जेब खर्च की रकम हर माह ताया उनको अलहदा भिजवा देते थे। ये रकम वो जैसे चाहें खर्च करती थी। खासी रकम हर माह मिल जाती तो सबाहत को भी ऐश करा देती। जो चीज़ वो चाहता दिलवा देती थी। दादी की वफ़ात के बाद उनका कमरा सबाहत को मिल गया।
कमरा सपना ताई के कमरे के साथ ही था। सपना ने अम्मी से कहा कि अकेले सोने से डर लगता है, सबाहत रात को भी दादी के कमरे में सोया करे तो मुझे डर ना लगेगा। अम्मी ने भाई से कहा कि तुम ताई की तरफ जाकर सोया करो। शादी के बाद सपना काफ़ी दिलेर और आज़ाद ख्याल हो गई थी। शौहर के बाद सास के ना होने ने बेखौफ कर दिया था। मेरे भाई को भी लालच देकर उसने अपनी तरफ कर रखा था। वो किसी ना किसी बहाने अब सबाहत के साथ घर से भी बाहर जाने लगी, कभी शॉपिंग के लिए बाजार और कभी किसी सहेली के घर का कहकर अम्मी उसको कुछ ना कहती कि कुछ कहा तो कहीं शौहर को हमारी शिकायतें ना लिख भेजे। इससे ये हुआ कि सबाहत भी सपना का गुलाम बन गया और हमारे हाथों से निकल गया। एक दिन शोर गुल का बहाना बनाकर सपना ने आधी उठी सहन वाली दीवार को भी ऊंचा करके अपने हिस्से को मुकम्मल तौर पर हमसे अलहदा कर दिया और मेरा भाई जो लालची और खुद गर्ज हो चुका था मुस्तकिल तौर पर उनकी तरफ वाले हिस्से में जा बसा। हमको इस बात का बहुत सदमा था कि सबाहत हमको छोड़कर सपना की तरफ चला गया है। बेशक वो अकेली थी मगर हम भी तो अकेले थे। घर में मर्द तो सिर्फ भाई था, हमारी तरफ भी आता था मगर आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात तो हो चुकी थी। ताई उसकी जेब में अच्छी खासी रकम डालती रहती, यही नहीं अच्छे कपड़े और खाने की मज़ेदार चीज़ें देती तो वो उधर का रहा। मेरी माँ की उम्मीदें खाक में मिल गईं। अब लोग सपना और सबाहत के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। हमारे बाप का तो पता ना था, हम सब सबाहत के सहारे और उम्मीद पर जी रहे थे। वो भी हमसे दूर हो गया। उसको माँ का तो क्या, मोहल्ले वालों का भी लिहाज ना रहा कि वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अपने ताया को भी भूल गया कि जिन्होंने हमारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। माँ खौफ के मारे ताया को कुछ लिखने से मजबूर थी। उधर सपना के हौसले बढ़ते जाते थे। वो अब घर में ना टिकती थी। अपनी आरजुओं की तकमील की खातिर वो सबाहत को साथ लिए फिरती और वो नादान ताई की चालों का खिलौना बना हुआ था। बिल आखिर मंझले चचा ने इस राज का खोज लगा लिया। जब मोहल्ले वालों ने आकर उनको होशियार किया तो उनको कुरेद लगी। तब मालूम हुआ कि सपना अपने मोहल्ले के उसी लड़के से मिलती है जिसको वो शादी से कबल पसंद करती थी। एक दिन मंझले चचा ने सपना को उसी नौजवान के साथ सिनेमा हॉल से निकलते देख लिया, जबकि सबाहत सिनेमा से करीब एक होटल में बैठकर सपना के आने का इंतज़ार कर रहा था। चचा ने घर आकर सबाहत की पिटाई की तो उसने कहा, चचा मैं मजबूर था। सपना ताई कहती थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी वालदा और बहनों की झूठी शिकायतें तुम्हारे ताया को लिख भेजूंगी। वो तुम सबको घर से निकाल देंगे और ख़र्चा भी बंद कर देंगे। तब तुम क्या करोगे? तभी मैंने इस मामले को अम्मी से भी पोशीदा रखा कि ताई अपने पुराने चाहने वाले से मिलती हैं। बहरहाल मंझले चचा ने ताया को तमाम अहवाल लिखकर आगाह कर दिया। उन्होंने दुबई से ही सपना को तलाक भिजवा दी। मगर हमको भी सबाहत की बेवकूफ़ी की सज़ा मिली कि उन्होंने अम्मी को भी इस खेल में शामिल समझा। हमसे इस कदर बददिल हो गए कि हमारा ख़र्चा बंद कर दिया। ताया और मंझले चचा ने अम्मी से कहा कि अगर सबाहत यहाँ रहेगा तो तुम सब भी घर छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना उसको उसके बाप के पास जाने का कहो। आखिर उसका भी तो कुछ फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को देखे। अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर सबाहत को उसके बाप के पास चले जाने का कहा और चचा ने सबाहत को पता बता दिया जहाँ मेरे वालिद अपनी बीवी के साथ रहते थे। सबाहत वहाँ पहुँचा तो उसके वालिद ना मिले, क्योंकि वो तो काफ़ी अरसा पहले वहाँ से चले गए थे। अलबत्ता मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस लड़की को भगा कर उसके साथ निकाह करके यहाँ लाए थे, उसके वरसा ने बिलाखिर यहाँ का खोज लगा लिया और वो अपनी लड़की को ले गए और तुम्हारे वालिद को ज़दोकोब और अधमवा करके डाल दिया। बाद में उस लड़की ने भी अदालत में अपने बाप और भाई के हक़ में बयान दिया कि इस शख्स ने मुझे वरगला कर अगवा किया था और ज़बरदस्ती निकाह पर मजबूर किया था। वो वरसा की तरफ की हो गई और तुम्हारे वालिद को जेल हो गई। वो अब भी जेल में है। सबाहत सुनकर हमारी तरफ भी न लौटा, न जाने किधर निकल गया। यूँ हमारे वालिद के किए की सज़ा हमको मिली और आज तक मिल रही है। हमारे हिस्से की जायदाद मंझले चचा ने ख़रीद ली और हमको इस रकम से दूसरी जगह मकान ख़रीद कर दे दिया। मैंने बड़ी मुश्किलात सहकर ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत कर ली और अपनी वालदा और बहनों की कफ़ालत का बोझ उठा लिया। वालदा आज भी अब्बू का इंतज़ार करती हैं, मगर मैं कहती हूँ कि खुदा किसी ऐसे इंसान को बाप के दर्जे पर फायज़ ना करे जिसको अपनी औलाद का एहसास ना हो।
امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ.